Hello and welcome to Aditya classes where we have been discussing about data collection techniques these days. Now in previous lectures we have talked about the sources of secondary data and then the two major methods through which primary data can be collected. In last lecture we talked about survey and experiment. So these are the ways, these are the methods, these are the sources from which we can collect data. These are the mechanisms through which we can collect data. Survey is going out and asking people about their opinion, about their consumer behavior, about their buying preferences, anything. Whereas experiments are picking up a sample and subjecting it to some treatment. Picking up a sample, picking up 10, 15, 20 students and subjecting them to a training. The training could be anything from athletics to bowling practice to some maths questions, competitive exams, it could be any training. So, in that experiment what I am doing is, I am picking up a set of students, a bunch of students and then subjecting them to a training to see if my training is effective. So, I will measure the data, I will measure their scores, I will measure the time they are taking, I will measure their jump, I will measure their bowling speed. That will be collection of data through experiment. Why are we calling it experiment? Because we are doing it in, performing it in controlled environment. The subjects know that they are being observed. The subjects know that they are being provided with a treatment and then the effect of treatment is being measured. So that was survey and interview that we talked about last time. Today we will talk about sources of data collection, sources of primary data collection. Now that was survey and experiment are not exactly sources. Survey and experiments are methods in which you will be gathering the data. Methods in which one of which I am just observing them, I am just asking them, in other I am giving them a treatment. So those are methods through which your primary data can be collected. Today we will talk about what are various methods of sources of data collection, what are various methods of data collection. Fine. Now various methods of data collection, first I will list them down and then we will pick them up and discuss them in detail. First one that we will be talking about is observation method, interview method. Methods of collection. This is the topic that we are talking. First one is observation, then we have interviews, then we will be having questionnaires and schedules, questionnaires and schedules. Then there will be some smaller methods like warranty cards, distributor or store outlets. I will leave it over there. Warranty cards, distributor or store outlets, then we have methods like pantry audits, consumer panel, pantry audits, then there is consumer panel, then we have mechanical devices, and finally we will be having projective techniques. Now,
apart from this, last time what we talked about was a different kind of classification of sources, which was survey and experiment. Now when we talk of methods of data collection, क्या है ये कि किस तरह से डेटा जाकर के बाहर कलेक्ट किया जाएगा. हाउ डू आई गो आउट एंड गैदर माई डेटा. वो जो हमारे पास टैली बनने वाली है, हमारी एक डायरी के अंदर हम टैली बनाने वाले हैं कि कितने जनों ने क्या बोला, कितनों ने क्या बोला. जो हमारी टेबल्स बनने वाली है, जो हमारा एनालिसिस होने वाला है, मीन मीडियन मोड आने वाले हैं, वो जो डेटा आएगा, वो नंबर्स आएंगे, वो कहाँ से आएंगे. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑल दोस डेटा. तो ये कुछ हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट. नाउ सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद दीज. सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स तो ये है कि जिससे मैं पूछ रहा हूं उसको मैंने कोई ट्रीटमेंट दिया है या नहीं दिया है. जिससे मैं पूछ रहा हूं, मैं जाकर के उससे एज इट इज पूछ रहा हूं या उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया गया, उसको कोई दवाई दी गई है, उसको कोई ट्रेनिंग दी गई है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. तो इस सर्वे और एक्सपेरिमेंट तो डिपेंड करता है कि रिस्पोंडेंट की क्या स्टेट है. हैव आई ट्रेन्ड देम. क्या मैंने उनको तैयार किया है कि मैं आपसे ये पूछने वाला हूं. क्या मैंने उनको तैयार किया है कि भाई ये ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद आपका जंप मेजर किया जाएगा. तो वो तो एक्सपेरिमेंट हो गया, डायरेक्ट जाकर के पूछा जा रहा है तो सर्वे हो गया. तो इनके बारे में तो वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल इन लास्ट क्लास. टुडे विल टॉक अबाउट दीज मेथड्स, जहां पे सबसे पहले वी हैव ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है? You just go out and observe. हम किसी से कुछ पूछेंगे नहीं. I'll not be going and interviewing someone. I'll just go out, stand there, watch them do something. I'll stand on a traffic signal and watch how many people jump the light. I'll stand on a traffic signal and watch how many people are giving indicator before taking a side or turning. So this is observation. I'm not asking anybody. I'm just observing. I'll go to the control room and observe what students are doing when teacher is not in the class. If we go out and ask those students, what were you doing when the teacher was not here? Most of them will say, we were just sitting, we were just talking. They'll not tell the true picture. But if I observe through CCTV cameras, what are these students doing? So that is observation method. I'm not asking anybody, I'm just observing. When we talk of observation method, when we talk of observation method is generally used for topics concerning behavioral sciences. Generally used for topics concerning behavioral sciences. What are behavioral sciences? Where we need to study behavior of an individual. A lot many times what happens is कि हम जब किसी से कुछ पूछते हैं कि उसका behavior कैसा है, तो that person is not in a state to tell me exactly how he behaves. More often than not, the answers that you get are political correct answers. जैसा आंसर दिया जाना चाहिए. जब आप बड़ों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? हम उनको नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं. पूछा जाएगा तो शायद ऐसे आंसर्स आएंगे. लेकिन हम सिर्फ ऑब्जर्व करें कि जब ये किसी बड़े से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस एक्सेंट में, किस लहजे से बात करते हैं, दैट वुड बी ऑब्जर्वेशन. तो बिहेवियरल साइंसेज की जनरली जो रिसर्चेस होती हैं उनके अंदर हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वो मेरे को पता भी नहीं होता है कि आई एम हाइडिंग समथिंग, पर मेरा बिहेवियर का एक तरीका होता है. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम. मेरे अंदर कोई ऐसी रैश ड्राइविंग की आदत नहीं है, मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर कोई रेज नहीं है, मैं जनरली कोई रूल्स भी नहीं तोड़ता हूँ, आराम से मुड़ने से पहले इंडिकेटर देता हूँ, गाड़ी पे बाइक पे हेलमेट लगाता हूँ, कार के अंदर सीट बेल्ट बांधता हूँ. लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जैसे ही वो रेड ऑरेंज होती है, अचानक से मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चलाना शुरू कर देता हूँ, वो रोल होनी शुरू हो जाती है. और वो ग्रीन होता है उससे पहले एक्चुअली माई व्हीकल इज मूविंग. अब मैं अगर ये किसी से पूछता हूँ तो उसको इनेटली ध्यान भी नहीं होगा कि वो ऐसा करता है, लेकिन उसके अंदर वो एक इंस्टिंक्ट है
कि ग्रीन होते ही आई हैव टू रश, ऑरेंज होते ही उसको ये कहा गया था कि बी प्रिपेयर्ड, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया जाए, गियर में डाल लिया जाए, लेकिन हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा रोल भी करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। ये चीज़ पूछी जाएगी तो शायद बहुत सारे लोग हाँ नहीं भरेंगे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा आप मुड़ने से पहले हाथ देते हैं या नहीं देते हैं। अगर ये पूछा जाएगा तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया होगा। तो इन सच केसेस व्हाट वी डू इज वी गो फॉर ऑब्जर्वेशनल मेथड, कि जहां पर हमारे को बिहेवियर स्टडी करना है, जहां पर वी हैव अ डाउट कि सामने वाले को इतना आइडिया ही नहीं होगा कि वो करता क्या है, कि क्या वो सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो मुड़ने से पहले हाथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। इन सच केसेस इट इज ऑलवेज सजेस्टेड हम क्या करें, ऑब्जर्वेशनल मेथड। व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल मेथड? जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट सी, जस्ट वॉच। हमारे को उसको कुछ नहीं कहना है कि आप ट्रैफिक लाइट क्यों जंप कर गए, हमारे को उसको नहीं कहना है कि मुड़ने से पहले इंडिकेटर देना था। हम अगर उसको कहने लग गए कि मुड़ने से पहले इंडिकेटर देना था तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई। आई एम ट्रेनिंग हिम एंड देन चेकिंग हिम। तो ऑब्जर्वेशनल इज जस्ट ऑब्जर्विंग, जस्ट वॉचिंग, कि जब टीचर नहीं है तो क्लासरूम के अंदर बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। प्रिंसिपल इज ऑब्जर्विंग कि हाउ डज अ टीचर इंटरेक्ट विद क्लास। अगर कोई भी जब प्रिंसिपल पूछता है टीचर से कि आप टाइम से क्लास में जाते हैं, तो हर टीचर कहेगा यस आई एम देयर ऑन टाइम। आप जल्दी क्लास छोड़ते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल पूरी क्लास लेकर के ही छोड़ता हूं। क्या आप वहां पर एक ही जगह खड़े होकर के बोलते रहते हैं या बीच में जाकर के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं? क्या आप बोर्ड यूज करते हैं या नहीं करते हैं? तो इन सब केसेस में टीचर क्या करेगा, प्रिंसिपल के सामने डिफेंसिव होकर अच्छे जवाब ही देगा जो पॉलिटिकली करेक्ट है, जो उस टीचर को करने चाहिए। रादर व्हाट ही कैन डू इज प्रिंसिपल कैन ऑब्जर्व। एक सीसीटीवी लगे हुए हैं हर क्लास के अंदर, रोटेशन पे चल रहे हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी टीचर कब कहाँ था, हाउ वॉज ही स्टैंडिंग, हाउ वॉज ही कैरिंग हिमसेल्फ, हाउ वॉज ही इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, बोर्ड किस तरह से यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन। बिहेवियरल साइंसेस के किसी का बिहेवियर जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं उस टाइम। हाँ, अब इसके अंदर ये है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें तो एडवांटेजेस किस तरह की रहेंगी हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर। सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड। बहुत बार ऐसे होने लग जाता है कि जो जवाब दे रहा है उसके अंदर थोड़ा सा बायस होगा। जैसे अभी हमने टीचर का एग्जाम्पल लिया, वो टीचर क्या करने की कोशिश करेगा, वो ही जवाब देने की कोशिश करेगा जो सही है, जो प्रिंसिपल को अच्छे लगेंगे। कि नहीं सर, मैं बिल्कुल टाइम से जाता हूँ, टाइम से बाहर आता हूँ, बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, पार्टिसिपेटिव क्लास होती है, बोर्ड पूरा यूज़ करता हूँ, बोर्ड पे बहुत क्लैरिटी से लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या आ जाती है कि सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड। जो उस टीचर का एक बायस था कि मैं कैसा जवाब दूं, दैट इज एलिमिनेटेड। सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड। हम सब जने इस पूरी धरती से, ये धरती छोड़ दें, हम तो विश्वगुरु हैं, हम सब हिंदुस्तानी करप्शन के पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने बहुत करप्शन किया, कांग्रेस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस सरकार ने पैसा खा लिया, कांग्रेस सरकार ने तबाह कर दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करप्शन नहीं करना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि जब भी आप कोई जाकर के दुकान के ऊपर एक 5 रुपए का पेन लेते हैं तो क्या आप उसका बिल लेते हैं क्या? जब आप उसका बिल नहीं ले रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग? वो सेल्स जो हो रही हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड हो रही हैं। उसके ऊपर जो टैक्स जनरेट होना चाहिए था, जो उस पेन सेल का रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। ये करप्शन हुआ या नहीं हुआ? चलिए, पेन सेल्स में तो हम क्या कह देते हैं कि पेन तो ये कहीं ना कहीं से बन के आया, इस पर जीएसटी लग के आया। आजकल हम समझदार भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, व्हाट्सएप बहुत सुनते हैं, देखते हैं, फेसबुक बहुत देखते हैं, इंस्टाग्राम बहुत देखते हैं, तो हम बहुत समझदार होने लग गए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ऐसे कैसे पेन की चोरी हो जाएगी, जीएसटी ट्रैक होता हुआ है। ब्यूटीफुल। जब आप कचौरी लिखाते हैं, 2 दोस्त जाते हैं और 10-10 रुपए की 2 कचौरी लेकर के खा लेते हैं, क्या उसका बिल लेते हैं? दैट वॉज कंप्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड, उसका कहीं जीएसटी नहीं कटा है। उससे जो कमाई हुई है दुकान वाले को, वो किसी को नहीं पता। क्या उस दुकान वाले ने चोरी नहीं की? दुकान वाला कहता है कि मैं अगर इसको बिल कटाओगे तो मैं 16 रुपए की कचौरी दूंगा, नहीं तो 12 रुपए की है। आप भी क्या कहते हो, मेरे बिल का क्या करना है, ला तू 12 रुपए में दे दे। तो हम भी कालाबाजारी कर रहे हैं, दुकान वाला भी कालाबाजारी कर रहा है। ये बस शोर करने में अच्छा लगता है
कि नेहरू खा गया हमारे हिंदुस्तान को, नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया, हम भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आप करप्शन करते हैं, यू विल टेल नहीं मैं करप्शन नहीं करता हूं, दिस इज अ करप्शन। जब आप बिल नहीं ले रहे हो, दैट इज अ करप्शन। तो ऐसे जो इंस्टेंसेस होते हैं वहां पे क्या होता है, देयर इज अ बायस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक नेशनलिस्ट वे के अंदर बिहेव करने का एक कायदा बन गया है कि नेहरू को बुरा कहना है, कांग्रेस को बुरा कहना है, करप्शन को बुरा कहना है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं करप्शन नहीं करता हूं, आज की गवर्नमेंट करप्शन नहीं करती है। दैट इज अ बायस। हमारा जो भी ओपिनियन आएगा, हम जो कुछ भी बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं। दैट इज अ बायस, क्योंकि हमारे को दिखाना है कि गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग वेल, गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। हम कहेंगे कोरोना की क्या हालत है, बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी हालत बहुत अच्छी है, हम कहेंगे कि उनसे तो अच्छी है, पाकिस्तान से तो अच्छे हैं, यूएस से तो अच्छे हैं, चाइना से तो अच्छे हैं। सो द आइडिया इज, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे एक सब्जेक्टिव बायस आता ही आता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर एक पर्टिकुलर चीज से रिलेट करके अपने आप को जवाब देना चाहते हैं। इन सच केसेस ऑब्जर्वेशन, उन शॉप्स के ऊपर कैमरा लगा दिया जाए, कितने जने बिल लेते हैं अपने आप पता पड़ जाएगा। क्योंकि पेन में तो हमारे को पता नहीं पड़ता है कि जीएसटी की चोरी हुई या नहीं, वो जो कचौरी बिक रही थी उसके अंदर जीएसटी की चोरी हो रही थी। रेस्टोरेंट के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो वो 18% का जीएसटी लगा देता है, 24% का जीएसटी काट लेगा, तो वहां चोरी हो रही है अगर हम बिल नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब हर जगह हमारे को बिल लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते हैं। आई विल वॉच यू थ्रू ऑब्जर्वेशन। ट्रैफिक लाइट जो आप जंप कर देते हैं ऑरेंज होते ही, आई विल वॉच यू थ्रू ऑब्जर्वेशन। पूछने से कोई जना नहीं कहेगा मैं ट्रैफिक रूल तोड़ता हूं, पूछने से कोई नहीं कहेगा कि मैं बड़ों से अनादर से बात करता हूं, पूछने से कोई नहीं कहेगा कि मैंने ये ट्यूबलाइट फोड़ दी क्लासरूम की जब टीचर नहीं था, पूछने से कोई नहीं कहेगा कि ये चेयर मैंने तोड़ दी। ऑब्जर्वेशन, फाइन। सो सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड, ऑलमोस्ट ट्रूथ कम्स आउट, ऑलमोस्ट ट्रूथ कम्स आउट। यू कैन ऑलमोस्ट बी अश्योर्ड कि बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही ही आ रही है, क्योंकि जब हमारे को ये पता ही नहीं है कि कोई मॉनिटर कर रहा है, मेरे को किसी को जवाब देना है, तो आई बिहेव इन अ वेरी नेचुरल वे, जो मेरा नेचुरल वे। अगर कोई पूछता है कि आप कितने बजे क्लास में घुसते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं 8 बजे क्लास में घुसता हूँ, 9 बजे क्लास से निकलता हूँ। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ तो मेरे को पता पड़ता है कि 8 बजे ये कभी भी क्लास में नहीं घुसता, ये हमेशा 8:03, 8:05, 8:07 पे क्लास में घुसता है, ये कभी भी 9 बजे बाहर नहीं आता है, ये 8:50 पे 8:52 पे क्लास से बाहर आ जाता है। तो ऑलमोस्ट ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। किसी से पूछना नहीं है, जो सच हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। सो ऑलमोस्ट ऑलवेज द ट्रुथ कम्स आउट। देन इट इज फ्री फ्रॉम नीड फॉर रिस्पोंडेंट्स विलिंगनेस। ये जो मेथड है, इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम respondents willingness. It is free from respondents willingness. हम कई बार किसी को सड़क पे रोकते हैं और पूछते हैं, हाँ आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा क्या? अभी आप जो पीछे 3 ट्रैफिक लाइट्स को जंप करके आ रहे हैं, आपने किसी को जंप किया या नहीं किया? तो कई बार लोग हेजिटेंट होंगे, कई बार लोग साइड से निकल जाएंगे, लोग जवाब नहीं देना चाहेंगे, लोग देखते हैं कि ये टाइम वेस्ट करने आ गया, ये पता नहीं कौन पूछने आ गया है। तो हो सकता है पीपल माइट बी रिलक्टेंट टू गिव यू आंसर्स, लेकिन यहां पे वी आर फ्री फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स विलिंगनेस। किसी की विलिंगनेस नहीं चाहिए, आप तो कैमरा लगा दीजिए, नोटिस कर लीजिए कि कितने जनों ने ट्रैफिक रूल तोड़ा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आज आपने बॉलिंग प्रैक्टिस सेशन में कितने बॉल्स फेंके, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये चेयर किसने तोड़ी थी। यू कैन ऑब्जर्व इट फॉर योर सेल्फ। तो ये एक मेजर एडवांटेज है कि वी आर फ्री फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स विलिंगनेस। टीचर कितना भी शोर करता रहे कि बताओगे नहीं जब तक घर नहीं जाने दूंगा, कोई नहीं बताएगा, इट इज अ डेडलॉक। ऐसा हो नहीं सकता कि टीचर घर नहीं जाने दे, घर तो जाने देना पड़ेगा, पेरेंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब बच्चे तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पे अंडर ऑब्जर्वेशन वी आर फ्री फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स विलिंगनेस। वो बताए चाहे नहीं बताए, आई कैन ट्रैक किसने तोड़ी है चेयर, आई कैन ट्रैक आज आपने बॉलिंग सेशन के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर कितनी बॉल्स फेंकी है। फाइन। सो दिस इज another advantage, that it is free from need for respondents willingness. Then if we try to track some disadvantages, तो वो किस तरह के disadvantages हो सकती हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो बहुत ज्यादा एविडेंट है वो है वेरी कॉस्टली।
वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली कॉस्टली होगा। जब आप सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे हैं, आप दिन भर का या लेट से एक पूरे वीक का या लेट से एक पूरे महीने का, पूरे महीने की आपने 30 तारीख को एक मीटिंग कॉल कर ली, सब टीचर्स को बोल दिया कि हाँ आप बताइए, आप पहले तो आपने कह दिया कि सब टीचर्स को कि आप ट्रैक करते रहना, आप कितने बजे क्लास में जाते हैं, कितने बजे बाहर आते हैं, सब टीचर्स ट्रैक करते रहेंगे। 30th को आपसे पूछ लिया जाए, हाँ आप बताइए कितने दिन आप 8 बजे गए, कितने दिन आप 8:05 पे गए, विल गिव यू अ ट्रैक। तो कितना फास्ट हो गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट को मैंने सबको ओरिएंट कर दिया कि आपको इस तरह का डेटा कलेक्ट करना है। 30th को मैंने जाकर के 15 मिनट आधे घंटे के अंदर अपने पूरे कॉलेज के टीचर से पूछ लिया कि आपने डेटा कलेक्ट किया क्या। मेरे को फटाक से पता पड़ गया कौन कितने बजे आता था और कितने बजे जाता था। सो इट इज़ वेरी फास्ट। लेकिन ऑब्जर्वेशन में मेरे को इसी काम के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ देयर आर 10 क्लासेस, उन सब 10 क्लासेस का मेरे को देखना पड़ेगा टीचर कब एंटर हुआ, टीचर कब निकला। मेरे को 10 अलग अलग कैमरास व्यू करने पड़ेंगे। तो अगर आपने 10 मॉनिटर्स लगाए, 10 अलग कैमरास लगाए हैं, 10 अलग स्क्रीन्स लगाए हैं, तो इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर और टाइम कंज्यूमिंग भी है कि मेरे को अब हर क्लास में, हर दिन 8 वाली क्लास में भी, 9 वाली क्लास में भी, 10 वाली क्लास में भी, आई हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर टू ऑब्जर्व इट। नहीं भी हूं, बाद में रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं उसको फास्ट करके देख लूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। तो कंपैरेटिवली इट इज अ मोर टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। कॉस्टली तो है ही है, क्योंकि जितना टाइम आप एंगेज रहेंगे, जितना टाइम आपके रिसोर्सेज एंगेज रहेंगे, कॉस्टली तो हो ही रही है। सारे कैमरा चल रहे हैं, बिजली लग रही है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हार्ड डिस्क लगी हुई है। आप 30 दिन की रिकॉर्डिंग एक साथ देखनी चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क भी बड़ी लगी हुई होंगी। तो इट इज़ कॉस्टली अफेयर, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। इसको क्या कह दिया कॉस्टली के साथ, एक्सपेंसिव। इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। एक्सपेंसिव, it is an expensive proposition, it is a time consuming proposition. Information provided is limited. Information provided is limited. जैसे अभी है, हमने 2 एग्जांपल्स लिए कि मैं सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूं, हेलमेट भी पहनता हूँ, सीट बेल्ट भी लगाता हूँ, मुड़ने से पहले इंडिकेटर भी देता हूँ, ओवरटेक राइट साइड से करता हूँ, कभी किसी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब जब मैं सड़क पे होता हूँ तो मैं पूरे टाइम जो प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा होता हूँ। बस ये एक छोटी सी मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब भी वो लाइट ऑरेंज होती है तब मैं थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता हूँ। अज्यूमिंग कि दूसरों की भी ऑरेंज हो गई है, रेड हो गई है, वो रुकने लग रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, उनकी रेड होती है और हमारी ग्रीन हो उससे पहले 2-3 सेकंड का हमारे को एक ऑरेंज मिल जाता है। क्योंकि उनकी रेड होते होते कोई जना अगर सड़क से निकल चुका है मुड़ने की तरफ, तो उसको पूरा कंप्लीट हो जाए। और लोगों के लिए तो रेड हो गई, लेकिन जो निकल गया है उसको निकलने का टाइम दिया जाए, इसलिए हमारे को ऑरेंज दिया जाता है कि आप ऑरेंज देख लीजिए, तैयार हो जाइए जब तक ये निकल जाएगा, एंड देन यू कैन रन। तो अब आइडिया तो ये था कि हम उस ऑरेंज में तैयार हो जाएं, लेकिन अब वहां पे वो एक इंस्टिंक्ट है मेरी कि मैं थोड़ा सा रोल करना शुरू कर देता हूं। तो इसका मतलब यस, यहां पे वो सब्जेक्टिव बायस हट गया था, सच्चाई सामने आ रही थी, ऑलमोस्ट ट्रुथ सामने आ रहा था। लेकिन एक सच ये भी है कि जो ज्यादा बड़े ट्रैफिक रूल्स हैं वो सारे मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं जनरली स्ट्रोल करना कब शुरू कर रहा हूं, जब वो गाड़ियां सारी ऑलमोस्ट निकल गई है और ऑरेंज से अब ग्रीन होने वाले हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक रुका हुआ है, ऑलमोस्ट उस टाइम निकल रहा हूं, विच प्रोबेबली इज नॉट दैट मच रिस्की। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम जस्ट रोल कर रहे होते हैं तो अगर कोई आ रहा है तो हम ब्रेक भी मार सकते हैं, और ट्रैफिक लाइट पे कोई इतना तेज आता भी नहीं है कि एक बहुत मेजर सीवियर एक्सीडेंट हम करवा दें उस ऑरेंज लाइट के टाइम पे। सो द आइडिया इज, मैं पूरे टाइम तो अच्छी गाड़ी चला रहा हूं, उस टाइम नहीं चला रहा हूं, तो अब अल्टीमेटली रिकॉर्ड क्या हो गया कि भाई मैं अच्छी गाड़ी नहीं चला रहा हूं। ऐसे ही 10 जनों का रिकॉर्ड आपने ले लिया तो आपको पता पड़ गया कि नहीं, यहां पे ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ी हुई है, क्योंकि 10 के 10 जने क्या करते हैं, ट्रैफिक लाइट पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है वो बाकी सब जगह अच्छा चला रहे हो सकता है जो चलती सड़क के ऊपर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो। सो द आइडिया इज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज लिमिटेड। अभी जब आपने टीचर का आने जाने का टाइम देख लिया, आपने ये देख लिया कि हाँ ये क्लास के अंदर 8 से 9 है, अब वो 8 से 9 चुटकुले सुना रहा होगा, वो 8 से 9 तक पूरी 1 घंटा उनकी क्लास में भी रहता है, बातें कर रहा होगा, बच्चों को कह रहा होगा हाँ बैठ के चुटकुला सुनाओ, हाँ भाई कल कहाँ पर थे, दिवाली पर क्या किया,
सो ही इज नॉट एक्चुअली टीचिंग, लेकिन अब वो कैमरा के अंदर तो क्या लग रहा है कि ये 8 बजे आ गया और ये 9 बजे गया है। ही इज इंटरेक्टिंग, बच्चे बीच बीच में खड़े होकर के जवाब भी दे रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज लिमिटेड। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि यस जो आ रहा है वो जो दिख रहा है वो सच है। अगर आप 8 बजे आना और 9 बजे जाने को चेक कर रहे हो वो बिल्कुल सच दिख रहा है, लेकिन लिमिटेड है इन स्पैन, इन स्कोप। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम इसके अंदर रह जा सकती है। सो दीज वर बेसिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये कहां यूज किया जाता है? बिहेवियरल साइंसेस के अंदर। जनरली बिहेवियरल साइंसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। बिहेवियरल साइंसेस का क्या मतलब हुआ? लाइक आपको अगर कोई बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करने, कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करने, कोई मेडिसिनल एक्सपेरिमेंट्स करने, कोई फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने, वहां पे हम ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं करते। वहां पे कौन सा होएगा? जो अभी हमने यहां पे देखे थे, कौन कौन से मेथड्स थे? सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज होएगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम एक चीज को बार बार करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जर्वेशनल मेथड वहां यूज नहीं होगा। तो अगर आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कितना फ्यूल कंजम्पशन इंप्रूव किया जाता है इंजन की डिजाइन के अंदर चेंज करके किया जा सकता है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं यूज होएगा। ऑब्जर्वेशन तो वहां होता है जनरली जहां पर बिहेवियरल साइंसेस है, जहां पे वी अज्यूम, वी एक्सेप्ट कि सामने वाला कुछ छुपा लेगा मुझसे, और छुपाएगा नहीं तो भी वो मेरे को समझा नहीं पाएगा, कि उसका ये एक हैंडीकैप है कि वो मेरे को डिटेल्स नहीं दे पाएगा। इन सच केसेस वी मेक यूज ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड।